A very good evening everyone. आप सभी का प्राणभी सर द्वारा लिए गए इस इनिशिएटिव में मैं वैद्य सोनल जुर्यानी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्राणभी सर ये वैद्यों को आत्मनिर्भर बनाने का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें वैद्य जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन बनकर आयुर्वेद के माध्यम से इस समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मानस रोग, शोध, सुप्रजा जैसे कई लेक्चर्स कंडक्ट किए जा चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम आयुर्वेदिक फार्मिंग, द बैकबोन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। As you all know, this series will be conducted by Dr. Ashish Pal sir. Sir founder and managing director है of Arpan Ayurveda. He is a renowned and well-known Ayurvedic doctor in Central India. He completed his bachelor's from Barkatullah University in 2014. Sir also completed his certification in PG CVD and PG CSD from Mumbai. Dr. Ashish Pal sir started practicing Ayurveda in Chhindwara since 2014. With his hard work, dedication, and devotion to his vision of spreading this miraculous healing power of Ayurveda, he successfully established a full-fledged Ayurveda clinic and Panchkarma center in Chhindwara. With scientific temperament, resources in hand, he focused on blending traditional knowledge with modern science in only 2 years of hard work. Can you believe it? He successfully developed some very potent Ayurvedic medicine formulation and composition and became the best Ayurvedic pharmacy in Chhindwara. At Arpan Ayurveda, he's taking care of all the assignments related to new formulations and Ayurvedic treatment related works. Besides this, he also writes articles for various newspapers and magazines. Blessed with natural talent and leadership capabilities, strong conviction, and above all, the willingness to smear his hand with soil to breathe life and soul into his products. These factors have been instrumental in building this horticulture heaven which he has today. And today, at Arpan Ayurveda, under the able guidance of Dr. Ashish Pal sir, is going from strength to strength and is all set to carve a niche for itself in the global arena as well. So with huge achievement and devotion for his work, I am sure sir has lots and lots to offer from his experience, isn't it? So as I am excited, I hope you guys are all also excited to learn lots of interesting facts about this Ayurvedic farming. So without a further delay, let's invite sir with all the open hands so that he can share his vast bundle of experience with all of us. So I would like to request sir to please unmute his mic and share his bundle of knowledge with all of us. Over to you, Dr. Ashish Pal sir. नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष पाल, मैनेजिंग डायरेक्टर अर्पण आयुर्वेदा। जैसा सोनल ने बताया, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बताया, मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा करता, तो मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को देता हूं कि मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने 2007 में बीएमएस ज्वाइन किया था, 2013 पास आउट हूं। 2013 पास आउट होने के बाद मुझे प्रैक्टिस में तो इंटरेस्ट था। मैं एनोरेक्टल सर्जरीज करता था पहले। उसके बाद मैंने अपना एक पंचकर्मा सेंटर अपने शहर में एस्टैब्लिश किया 2014 में।
और साथ-साथ ही हमने डे 1 से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हुई थी। हम मेडिसिन्स बनाते थे। पहले खुद के क्लिनिक के लिए बनाते थे और 3-4 महीने में ही हमने फिर उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तब मैंने 2 कल्प बनाए थे जिनको मैं वैद्यों को 2-2 3-3 जार्स फ्री में देता था कि सर आप इनको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद मुझे इसका रिजल्ट बताइए तो हम इसको कंटिन्यू कर पाएँ। 2 प्रोडक्ट था जिनसे हमने शुरू किया था। एक हमारा लैक्सेटिव पाउडर था और एक हमारा पेन ऑयल था। 2 प्रोडक्ट से शुरू किया था। आज हम 9 साल हो चुके हैं और आज हम लगभग 2200 प्रोडक्ट से 2500 प्रोडक्ट के आसपास हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 39 कंपनीज़ प्लस हैं जिनके लिए हम रेगुलर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 43 रजिस्टर्ड कंपनी हैं जिनके लिए हम थर्ड पार्टी और लोन लाइसेंस पे जिनके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। रिसेंटली अभी हमने हेम्प से बनी हुई दवाइयों का भी काम स्टार्ट किया है। उसके लिए मुझे नाइजीरिया से फंडिंग मिली है। जो हमने एक सेपरेट नई कंपनी बनाई है, हेम्प सत्व नाम है कंपनी का। उसमें हम हेम्प से बने हुए उत्पाद बनाते हैं और बहुत जल्द हमारे उत्पाद जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ और लेगोस जो है वो हम वहाँ पे ऑफिस हमारा डाल रहे हैं। तो लेगोस से हम पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, हम वो वहाँ से मैनेज करने वाले हैं। तो ये मेरा एक छोटी जर्नी थी। तो ये आयुर्वेदा फार्मिंग और आयुर्वेदा रसशास्त्र ये सब आपस में जुड़ा हुआ है क्योंकि जैसे हम भारतीय हैं, हमको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है जो बात है। जब आप चिकित्सक होते हैं, आयुर्वेदा चिकित्सक होते हैं या आप फार्मेसी जब चलाते हैं, तब आपको पता पड़ता है कि कितना ज़्यादा महत्व है औषधीय खेतियों का, फ्रेश अवेलेबिलिटी का और जैसी चाही गई, जैसी बताई गई हमारे रेफरेंसेस में, संहिताओं में जैसी लिखी गई है, वैसे उत्पाद पाना कितना मुश्किल है, वैसी जड़ी-बूटी या रॉ मटेरियल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब आपको मुश्किल होती है और आप अच्छा काम करना चाहते हैं, ऑथेंटिक दवाइयाँ बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो जब हमने शुरू किया, तो बहुत सारे भावना द्रव्य के लिए आपको फ्रेश हर्ब लगता है। शास्त्रोक्त हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो शास्त्रोक्त जब हम बनाते थे, तो उनके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स है, वो मिलता ही नहीं है मार्केट में आज की डेट में। बहुत सारी चीज़ें मिलती ही नहीं है। कुछ चीज़ों में जो है कि जो पंसारी होता है हमारा, तो हमारी 100% डिपेंडेंसी जो है वो पंसारी के ऊपर है। तो जब पंसारी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, तो पंसारी के साथ हमारे क्या प्रॉब्लम होता है कि पंसारी को ये नहीं पता है कि मान लीजिए नीम, तो नीम जो है, अब नीम जो है, नीम में लगभग पूरा पौधा यूज़ होता है। नीम की छाल यूज़ होगी, नीम का तेल यूज़ होता है, नीम का मींगी यूज़ होती है, नीम की पत्तियाँ यूज़ होती है। तो ये उसमें क्या होता है कि जो हम डिज़ायर्ड चीज़ें चाह रहे हैं, मैं नीम का उदाहरण बता रहा हूँ, पर बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि जिस एक पौधे का जो अवयव प्रयोज्यांग जो हमको बताया हुआ है, वो प्रयोज्यांग छोड़ के अन्य प्रयोज्यांग जो हैं वो हमको दे दिए जाते हैं। बहुत सारी जगह अश्वगंधा की मूल जो है, अश्वगंधा का मेन जो पार्ट यूज़ होता है वो मूल होता है। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको पंचांग भी मिल जाएगा, अभी आपको अश्वगंधा की पत्तियाँ भी मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ पत्तियों के लिए कुछ कल्प नए बताए गए हैं, कुछ नई रिसर्च भी आ गई है कि पसगंध की पत्तियाँ शुगर में और कुछ अन्य व्याधियों में उपयोग की जाती हैं। पर जहाँ पर जड़ का प्रयोग करना है हमको, वहाँ तो हमें मूली लेनी पड़ेगी ना। तो ये अभाव द्रव्य और इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जाती है और खासकर जब आप क्लासिकल आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जाती है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। जब मुझे फेस करनी पड़ी तो मैं छिंदवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर पेंच नेशनल पार्क जो है, वहाँ पर मेरा एक गाँव है, वनग्राम, मैं वहीं पर अभी रहता हूँ।
तो हमने वहां पर 5 एकड़ हमारी पुश्तैनी जमीन थी, तो हमने हमारी सारी संपत्ति जो छिंदवाड़ा में थी वो वहां से बेच दी, और वहां से हम सपरिवार यहाँ पर, जो एक वन ग्राम है छोटा, पेंच नेशनल पार्क के पास, सॉरी तहसील है, इसके पास में हम रहते हैं। यहाँ हमारी 5 एकड़ उपजाऊ जमीन है, खाली जमीन है। तो हमने इस पे शुरू किया धीरे धीरे, जो जो हमें द्रव्य लगते थे ताजी भावना के लिए, पल्प बनाने के लिए, तो ऐसे हमने धीरे धीरे किया। 1 एकड़ में एलोवेरा लगाया, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज्यादा लगता है भावना देने में। बहुत सारे द्रव्यों में भावना के रूप में जो एलोवेरा है वो उपयोग किया जाता था। तो ये सब जो बेसिक समस्याएं थी, ये हमारा मेरा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, जो हम इन 7 दिनों में साझा करेंगे। तो जैसा आज का हमारा जो टॉपिक है, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, जो है वो ये हमारा आज का विषय है। मेरा विजुअल क्या आ रहा है वो मुझे दिख नहीं रहा है सोनल, क्या विजुअल ठीक है मेरा, या फिर अभी सिर्फ स्क्रीन आ रही है, मेरा विजुअल हाँ, नहीं आ अभी रहा? सिर्फ स्क्रीन आ रही है, आप विजिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा हमारा आज का टॉपिक है, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, तो ये स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ वैद्यों के लिए है। आप मेरी एक बात को यदि समझें, तो ये जो स्कोप स्कोप और अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जो मार्केट है, आप सभी वैद्य हैं, आप सभी चिकित्सक हैं, बहुत सारे वरिष्ठ चिकित्सक भी मुझे दिख रहे हैं कोर्स में। तो इसको आज समझिए, जो अवेलेबिलिटी या जो उपलब्धता जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की, वो सिर्फ और सिर्फ पंसारी तक सीमित है। इंडिया में उसके अलावा कोई और सिस्टम है ही नहीं जड़ी बूटी का। कृषि से जो भाग आता है जड़ी बूटी का, जो भाग आता है वो बहुत कम है। कृषि से आज भी अधिक से अधिक 10% भाग जो है जड़ी बूटी का आता है। जो मेन हमारा सोर्स है वो है सिर्फ और सिर्फ आपके शहर का मशहूर पंसारी। जैसे मैं भोपाल से पढ़ा लिखा हूँ, तो भोपाल में मूलचंद फूलचंद जो हैं वो किंग कहलाते हैं। वो ही उन्हीं के यहाँ पे आपको किसी भी आम आदमी को, क्योंकि हम भारतीय लोगों में घर में भी मसाले और जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये पंसारियों का जो योगदान है इस विधा को जीवित रखने में, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। पर आज जो है वो पूरी वो बिल्कुल अ, तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जो पुराना पंसारी होता था और जो पुराना समय होता था, उस समय उपलब्धता मेडिसिन प्लांट की बहुत अच्छी थी। आप ऐसे देखेंगे तो हमारी हमारा जो अवेलेबिलिटी होती थी दवाइयों की, तो वो 90% पूरी जड़ी बूटियां जो हैं वो वन से आती थी। चाहे आप अगर अश्वगंधा की बात करें, चाहे आप मुसली की बात करें, चाहे आप तुलसी की बात करें, और अर्जुन की बात करें, सॉरी, तो ये सारी जो औषधियां थी, वनौषधियां थी, इसलिए इनको वनौषधि भी कहते थे, क्योंकि इन सब की जो उपलब्धता थी वो पूरी तरह से वनों पर आश्रित थी। 90-95% तक हल्दी और कुछ कमर्शियल चीजों को, कुछ सुगंधित पौधों को छोड़ दें हम, तो 90% जो हमारी अवेलेबिलिटी होती थी जड़ी बूटियों की, वो सारी वन से होती थी। पर क्योंकि अभी मैं खुद एक वन ग्राम में रहता हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वन किस तरह से खत्म हो रहा है। तो ये बहुत ही बेकार स्थिति है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पूरा शास्त्र जो है, जो चिकित्सा के चतुष्पाद बताए हुए हैं, विशक वैद्यानुपास्तथा रोगी पाच्यचुष्टियम, उसमें जो दूसरा भाग है वो पूरी तरह से औषध पर डिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं हर्बो मिनरल्स दवाइयां जो धीरे धीरे कम हो रही हैं। नई पीढ़ी तो हर्बो मिनरल्स कॉम्बिनेशन या मूलतः कहा जाए तो रस औषधियों का प्रयोग जो है वो बहुत कम हो रहा है। जो पेटेंट दवाइयों का प्रयोग आजकल अधिकता में हो रहा है, उन पेटेंट प्रोडक्ट्स में हर्बल फॉर्मुलेशन होता है। हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन या रस औषधियां, रस कल्प जो है वो बहुत कम होती हैं। नई पीढ़ी यूज भी नहीं करना चाहती। पढ़े लिखे रोगी हमारे पास आते हैं जो गूगल पे देख के आधा ट्रीटमेंट देख के आते हैं,
तो वो पहले से देख के आते हैं कि पारद है, लोह है, ये हैवी मेटल हमको नुकसान करती, किडनी खराब करती, लीवर खराब करती। तो ये उस प्रकार का सिनेरियो भी हो गया है। तो रस औषधियाँ जो है वो अभी अभी भी बहुत कम यूज हो रही हैं, और आगे जो भविष्य हम देखेंगे तो रस औषधियों का भविष्य जो है वो 80-20 ही होने वाला है। 80% जो है वो हमें आगे के वर्षों में 80% हर्बल कल्प ही या यूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये सारा जब जो उपलब्धता नहीं होना या अभाव होना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा पूरा शास्त्र इस पे टिका हुआ है। आप कितने ही अच्छे चिकित्सक हो जाएं, आप कितनी ही अच्छी नाड़ी देख लें, आप कितना ही अच्छा डायग्नोसिस बना लें, पर जब तक आपके पास सबसे महत्वपूर्ण टूल जो है वो औषध नहीं होगा, आप अच्छे चिकित्सक नहीं बन पाएंगे, ना इस आयुर्वेद को अगली पीढ़ी को दे पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इस विषय को बड़े गंभीरता से लिया जाए। ना केवल गंभीरता से लिया जाए, जैसा मैंने कहा कि ये स्कोप और अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी के पास नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। हमने पिछले 3 सालों में कुल 120 बिलियन जड़ी बूटियों का पूरे विश्व में कुल 120 बिलियन डॉलर्स में ट्रेड हुआ है वर्ल्ड में जड़ी बूटियों का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। चाइना जो है वो नंबर 1 एक्सपोर्टर है, दूसरे नंबर पे हम आते हैं। उसके अलावा हमने भारत ने कुल 36 करोड़ किलो जो है जड़ी बूटियों का हमने निर्यात किया है यहाँ से। ये पिछले 2-3 सालों के आंकड़े हैं। हमारे भारत में नोन जो प्रजातियां हैं वो 8,000 पौधों, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रजातियां 8,000 जो है वो उपलब्ध है। ये अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के पास नहीं है। कृषक जो है वो जड़ी बूटी को उगाना चाहता तो है, क्योंकि उसको खेत कृषि में नुकसान है, पर उसके पास एक गाइड नहीं है, जो एक हम कहते हैं ना एक वैज्ञानिक तरीका, जैसे गेहूं उगाने का, मक्का उगाने का या अरहर उगाने का एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, जो और उसमें एक लगा हुआ प्रॉपर विभाग भी है, कृषि विभाग, जो सिर्फ यही काम करता है। पर आप यदि जड़ी बूटी उगाने की कोई गाइड या किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल सिस्टम देखेंगे तो वो नहीं है। इसीलिए यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस फील्ड में आप आए, आप आयुर्वेद चिकित्सक, आप इस फील्ड में आए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बनाएं, गाइड्स बनाएं, कृषकों को अपने साथ में लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जैसा हर बार बोल रहे हैं कि भारत जो है वो इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर हो जाए, हम यहाँ से भेजे। मेक इन इंडिया का जो सपना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, sorry to हाँ, तो ये स्कोप और अपॉर्चुनिटी जो है वो पूरी तरह से हमारे पास है, और ये अरबों खरबों का बिजनेस है जिसमें अभी कोई भी समाज का किसी भी समाज का कोई भी वर्ग वो नहीं आया है। तो ये हमारे पास है, क्योंकि जो कोई म्यूट कर देगा प्लीज। हाँ, तो ये जो बॉल है वो हमारे पाले में है, वो आपके ऊपर है कि आप अब इसमें इस बॉल पे छक्का मारते हैं या चौका लगाते हैं या सिंगल लेते हैं। तो ये बॉल जो है वो हमारे पाले में है। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे कि स्कोप और अपॉर्चुनिटी। आदरणीय वैद्य तपन सर हम सभी के साथ गुरु हैं, तो सेशन शुरू करने से पहले गुरु वंदना हम तपन सर के नाम से करते हैं। अभी ये जो आइडिया है, इस कोर्स के पीछे का जो आइडिया है वो आइडिया है मेरी बुक। ये मेरी आने वाली बुक है, A to Z गाइड ऑफ मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। वन ऑफ काइंड है, मुझे नहीं लगता देश में किसी ऐसी कोई भी बुक किसी आयुर्वेदाचार्य द्वारा लिखी हो, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है। आप में से किसी को पता हो ऐसा तो आप जरूर कमेंट में या ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी सीखने को मिले। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस विषय में कोई
स्ट्रक्चरल गाइड नहीं है, स्ट्रक्चरल कोई मेथड नहीं है कि हमें यदि शुरू करना है ये काम, जैसे हमें बीएमएस बनना है तो हमको पता है कि हमें क्या करना है। तो मेरी ये बुक जिसको मैं पिछले 4 सालों से लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने की, तो ये फाइनली कंप्लीट हो गई है और ये बहुत जल्द साल खत्म होने पहले या जनवरी फरवरी तक ये आप सभी को उपलब्ध भी हो जाएगी। और ये है वो गाइड कि आपको कहाँ शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या बिकेगा, कैसे बिकेगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे नहीं लगता कि इस कोर्स करने के बाद इस किताब की जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी ये वो स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट है जिसको जो इंडिया में हर्बल जड़ी बूटी की खेती करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इंट्रोडक्शन जो है, जो मैंने ये वाला जो हम अभी बात कर रहे थे कि कल, आज और कल, तो कल क्या होता था, जैसे मैंने कहा कि 90% जो हमारी अवेलेबिलिटी थी वो जंगल से थी। आज जंगल ही अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, तो जंगल में ही पौधे बहुत कम है। अच्छा, जंगल में पौधे हैं भी तो जंगल में जो आप देखेंगे, मैं मध्य प्रदेश में रहने वाला हूँ और मैं मेरा अधिकतर समय जंगल में ही बिताता हूँ। मुझे कंक्रीट के जंगलों से उतना ज्यादा लगाव नहीं है, तो मैं जंगल, नदी, पहाड़ों पे ही अधिकतर अपना समय बिताना पसंद करता हूँ। तो अभी जो जंगल जो भी बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, वो प्राकृतिक जंगल लगभग नहीं है, वो वन विभाग के द्वारा लगाया हुआ जंगल है बहुत सा। जो डीप फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो वो तो ठीक है, पर बाकी आप जो देखेंगे तो वो जो है वो लगाया हुआ है। और ये लगाया वाला जो जंगल है उसमें आपको इमारती लकड़ी मिलेगी। तो जंगल तो है, हरियाली भी है, पर वहां पर इमारती लकड़ी है ना। जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, यहाँ का सागौन सबसे ज्यादा फेमस, तो अभी आपको जंगल में, हमारे यहाँ के जंगल में सागौन मिलेगा। बहुत सारी जगह, कई जगह पर नीलगिरी लगाया हुआ है, वन विभाग ने भी नीलगिरी लगाया हुआ है जंगल या जंगल के आसपास। इसके अलावा जो बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, वन विभाग के द्वारा, खुद के द्वारा, तो वो सारी भी जो होती हैं वो लगभग कुछ चयनित प्रजातियों होती हैं, वैसा होता था। आप यदि उत्तराखंड जाएं या किसी ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट में जाएं, जैसे मैं पेंच नेशनल पार्क के 2-3 किलोमीटर दूर रहता हूं, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट है। तो आप जब ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट में जाएंगे तभी आपको वो बायोडाइवर्सिटी दिखेगी कि एक, यदि आप 100 मीटर बाई 100 मीटर का जंगल को आप यदि एवेल्युएट करेंगे या देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि इतने छोटे से हिस्से में कितनी वास्ट वैरायटियां जड़ी बूटियों की, छुप की, लताओं की, प्रजातियों की, बहुत सारी चीजों की मिलेगी। और आप किसी ऐसे जंगल में आएंगे जो उथला जंगल है या जिसको बाद में अभी बसाया गया, तो आप देखेंगे 1 या 2 प्रजाति के पेड़ ही आपको मिलेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी की हालत है हमारी आज की। अब कल, है ना, तो कल हमने जैसे डिस्कस किया कि मार्केट तो बहुत बड़ा है, पर अवेलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं है। चाइना में क्या चल रहा है, चाइना जो है वो आयुर्वेद का ही अडॉप्टेशन जो है चाइना में चलता है, उसको कहते हैं चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो वहां पर क्या है, ये जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसमें बांस का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। वो बांस ना केवल वहां पर कमर्शियली यूज होता है, उसके अलावा बहुत सारी दवाइयों में भी यूज होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बांस के लेकर, वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा, आगे किसी दिन शेयर करूंगा कि कैसे वो सिंपल बांस को करोड़ों का बिजनेस करते हैं। वो औषध, ऐसे औषध के रूप में, वो मैं आगे आपको कभी बताऊंगा। तो जो चाइना है ये अभी जो है वो एक्सपोर्ट के रूप में जड़ी बूटी को सप्लाई करता है, एक्सट्रैक्ट के रूप में जड़ी बूटी ये सप्लाई करता है, क्योंकि जड़ी बूटी की जो डिमांड है वो ठंडे देशों में बहुत ज्यादा है, जैसे अमेरिका है और भी जितने, रशिया है, ये जितने ठंडे देश हैं वहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो वहां पर उष्णवीर औषधियां जो हैं वो सप्लाई की जाती हैं। तो ये चाइना जो है वो एक्सट्रैक्ट के रूप में देता है, और जब एक्सट्रैक्ट के रूप में देता है तो इसमें बहुत सारा स्कोप हो जाता है मिलावट करने का।
पर इंडिया जो है, इंडिया से जो है वो रॉ हर्ब ज्यादा जाती है। ये जो 36 करोड़ किलो हमने जो पिछले कुछ सालों में हमने एक्सपोर्ट किया है, तो वो हमने रॉ हर्ब एक्सपोर्ट किया है। हम एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो इसीलिए वहां पर ऑथेंटिसिटी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप रॉ हर्ब भेजेंगे तो हर देश के अलग अलग क्वालिटी प्रोटोकॉल्स हैं, शॉर्टिंग या क्वालिटी जो है उनके सबके पैरामीटर्स वहां पे सेट हैं। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बहुत सारे देशों में करना मैंडेटरी होता है, तो ये सब के बाद ही वो लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई करने पड़ेंगे। क्योंकि इससे ना केवल हमारा शास्त्र बचेगा, बल्कि बहुत सा विदेशी मुद्रा जो है वो हम भारत में ला सकते हैं, जिससे ना केवल किसानों का भला होगा, उसके अपितु हम इस शास्त्र को बचा भी सकते हैं, है ना। तो ये जो कल आजकल और आजकल का जो वो था, सिनेरियो था, वो था द ग्रोइंग डिमांड फॉर नेचुरल रेमेडीज। ओके, तो द ग्रोइंग डिमांड ऑफ नेचुरल रेमेडीज में आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 4 सालों से जो जो कोरोना या कोविड जो महामारी जिसने सारे विश्व को परेशान किया, तब हमने हमारी शक्ति जब जाहिर की, पूरी दुनिया के सामने हमारी ताकत हमने दिखाई कि कैसे, जिसको आप ये मॉक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन या स्यूडो साइंस का जो आप नाम देके हमको नकारते थे, कैसे हमने, हमारे अश्वगंधा ने, हमारे तुलसी ने, हमारे त्रिकटु चूर्ण ने, कैसे अपना अणु तेल ने कैसे पूरे विश्व में हमारी छाप छोड़ी। और उसके बाद से ये जो एक्सपोर्ट है मेडिसिनल के, जड़ी बूटी का नहीं, जो मेडिसिन है, प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, उसका मार्केट बहुत ज्यादा ग्लोबली बढ़ा है। और पूरे विश्व में सिर्फ भारत देश है जहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा मात्रा में होता है। चाइना में भी होता है, पर मैंने चाइना में बताया कि चाइना सिर्फ एक्सट्रैक्ट जो है वहां पे डोमिनेंस है उनका। वो एक्सपोर्ट जो करते हैं वो एक्सट्रैक्ट का बेचते हैं। कच्ची जड़ी बूटी या बने बनाए आयुर्वेद कल्प जो है वो आज भी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है, और सिर्फ और सिर्फ भारत से ही सभी जगह जाता है। दूसरे देशों में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना बहुत मुश्किल है, तो जितनी भी इक्का दुक्का या जो भी कुछ सैकड़ों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विदेशों में है, वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो जो ग्रोइंग डिमांड ऑफ नेचुरल रेमेडीज में जो मुख्य भाग है, वो भी मैक्सिमम बिजनेस जो है वो वैद्यों से और वैद्यों द्वारा संचालित फार्मेसियों से जा सकता है, और आप इससे बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। रोड मैप, इसको लेके जो रोड मैप हमने बनाया हुआ है ना, तो रिसर्च एंड प्लानिंग, ठीक है। अभी आप यदि लिखना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यदि आप लिखना चाहें तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बताओ सोनल, लिखेंगे या फिर ग्रुप में शेयर करें हम कल? सर लिख लेंगे तो वो बेटर है। लिख लेंगे आप? जी। चलिए, तो आप सब एक कॉपी पेन उठा लीजिए, और ये सारे जो माइलस्टोन 1 जो रिसर्च एंड प्लानिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च एंड प्लानिंग आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, इसका मतलब है कि आप इच्छुक हैं जड़ी बूटी की खेती करने में या किसी से करवाने में। तो मैं कुछ क्वेश्चन है वो जिनको आपको अपने आप से पूछना है। ये क्वेश्चन जब तक आप अपने आप से नहीं पूछेंगे तब तक आपका विजन क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मेरी बताई हुई गाइड आपको तब तक काम नहीं आएगी जब तक ये क्वेश्चंस आप अपने आप से नहीं पूछेंगे। तो रेडी? मैं भी जब तक एक सिप पानी का ले लेता हूँ, आप लोग पेन पेंसिल निकाल लीजिए। सर ग्रुप में भी शेयर कीजिए, कर दीजिएगा। वो कल कर दूंगा मैम, पर अभी फिलहाल डिस्कस करने के लिए तो हम कर लें। हाँ अच्छा, ठीक है। रेडी? यस सर। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? मेरा विजुअल आ रहा है? नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रही। अच्छा ठीक है। देखिए, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है, इसका मतलब है आप इच्छुक हैं और आपका इंटरेस्ट है जड़ी बूटी की खेती करने में, ठीक है। तो सबसे पहला आप ये क्वेश्चन पूछे अपने आप से कि क्या आपके पास पर्याप्त बजट है, या है बजट तो कितना है,
जो आपने डिसाइड किया है, पहला क्वेश्चन आपको ये करना है अपने आप से, ठीक है? आप एक बजट डिसाइड कीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं है, जितनी भी है, या आपने इस जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर क्या बजट अपना निर्धारित किया है ना? तो सबसे पहले पॉइंट है कि आप अपना एक बजट बनाइए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? दूसरी चीज, क्या जैसे मेरा बहुत क्लियर विजन है कि जब मेरा पंचकर्मा सेंटर था 2014 में, मैंने 2 साल उसको चलाया है, पर जब मैं फार्मेसी या मैन्युफैक्चरिंग में आ गया तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और अभी मैं फुल टाइम मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ऐसे आप अपना इसमें विजन बनाइए कि क्या आपको इसमें फुल टाइम आना है कि आप पार्ट टाइम करेंगे। पार्ट टाइम करेंगे तो आपको कितना मैन पावर या आप अपनी जगह किसको करने वाले, इन्वॉल्व करने वाले। बहुत सारे हम में से बहुत सारे चिकित्सक जो हैं वो किसान कृषक पुत्र हैं, तो क्या आप अपने पिता की मदद लेने वाले हैं, क्या आप अपने भाई की मदद लेने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इजी है, बहुत इजी है जड़ी बूटी की खेती में, तो जितना आसानी से हो जाता है वो मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिशनल खेती में इतनी आसानी से हो सकता है। कुछ आसान है पर समय या जो एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता है वो तो आपको होगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि क्या आप खुद करेंगे? खुद करेंगे तो फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे? आप नहीं करेंगे तो आपके जगह कौन होगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? उसके बाद आप कितनी जमीन से शुरू करने वाले हैं, ठीक है? क्या आपके पास खुद की जमीन है? जमीन है तो कितनी है, ठीक है? नहीं है तो क्या आप ठेके पे जमीन लेने वाले हैं? ठेके पे यदि लेने वाले हैं तो आपके जो भी आपका क्षेत्र है, जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ एवरेज जो है वो 10,000 रुपए 1 एकड़ जमीन जो है वो 10,000 सालाना खर्च पे मिल जाती है। मतलब यदि आपको किसी से जमीन ठेके पे लेनी है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेनी है, तो वो 10,000 रुपए में 1 एकड़ जमीन साल भर के लिए, मतलब दोनों फसल, बारिश की भी और गर्मी की भी, दोनों फसल जो है वो मिल जाती है। पानी वाली जमीन का बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 10 से अधिकतम 15,000 रुपए जो है वो छोटे जिलों में, बड़े जिलों में इंदौर भोपाल के आसपास तो 30,000 रुपए का रेट है। तो ये हमारे यहाँ का रेट है। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेने वाले हैं या ठेके पे लेने वाले हैं जमीन, तो वो उसका क्या रेट है, ठीक है? क्योंकि वो आपको बजट बनाने में मदद करेगा, तो ये आपको करना है, ठीक है? इसके अलावा एक एक बिजनेस मॉडल आप ये भी बना सकते हैं कि आप अपनी जमीन नहीं कर रहे हैं तो आप जो कृषक के साथ जो है, अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, दोबारा से अनविजिबल हो गया। एक सेकेंड। अभी अभी दिख रहा है सोनल? जी सर, अब विजिबल है। ओके, ठीक है। तो आप इसमें एक मॉडल ये भी बना सकते हैं कि यदि आपके पास जमीन नहीं है और आप ठेके पे भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि ठेके पे लेने पे आपका एक थोक रकम जाता है, तो आप ये कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं किसानों के साथ कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप फसल के लिए भी कर सकते हैं और उसको वर्किंग पार्टनर भी बना सकते हैं। मतलब ऐसे कि आधी मेहनत तुम करना, आधी मेहनत हम करेंगे, पैसे आधे तुम लगाना हम लगाएंगे, जो होगा प्रॉफिट लॉस लास्ट में हम उसको 50-50 कर लेंगे। या आप उससे बाय बैक गारंटी के साथ कर सकते हैं, जो सबसे रिस्की होता है जड़ी बूटी की खेती में, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा स्कैम चलता है। बाय बैक के नाम पे क्या होता है, कृषकों को एजेंसियां आती हैं और उनको कहती है कि आप हमसे बीज खरीद लो, तो ये कुछ खाद वगैरह भी ले लो, और हम आपसे इस रेट से तुलसी अश्वगंधा या जो भी है वो बाय बैक में आपसे खरीद लेंगे। पर क्या होता है कि ये एजेंसीज बीज और ये खाद जो भी उनका वो सिस्टम होता है वो बेचकर भाग जाती हैं और कृषक परेशान हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश में की एक घटना आपको बताता हूँ। नरसिंहपुर एक जिला है, नरसिंहपुर जिला है, वो गन्ने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, वो पूरे देश में गन्ने के लिए प्रसिद्ध जगह है। तो वहां पर
एलोवेरा का स्कैम हुआ था। तो क्योंकि एलोवेरा पौधा तो 1-1.5 रुपए 2 रुपए तक में आ जाता है, पर लगते बहुत ज्यादा हैं। 1 एकड़ में 5-8 हजार पौधे लग जाते हैं। तो ऐसा 20-20 25-25 एकड़ में एलोवेरा लगवा दिया और वो भाग गए, फिर एजेंसी जो है वो भाग गई। अब वो कृषक बहुत सालों से लगा हुआ है एलोवेरा, परेशान है कि उनको कोई ग्राहक नहीं मिलता। क्योंकि जड़ी बूटी के साथ यही है कि आपको ग्राहक पहले चाहिए होता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ग्राहक वाली प्रॉब्लम। तो ये इसलिए ये वाला जो मोड है बायबैक वाला, उससे कृषक डरता है। और छोटे कृषक हैं भारत में, बड़े बड़े कृषक नहीं है, तो उनके पास पूंजी की कमी होती है, इसलिए डरते हैं। तो ये वाला मोड जो है वो सबसे लास्ट में आप रखिए ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपको ये देखने की जमीन आप जो भी ले रहे हैं वो कैसी है ना। ये भी आपको बजट वाले पार्ट में मदद करेगा। यदि आपकी जमीन अच्छी है, काली है, उपजाऊ है, तो उसमें आप अच्छी फसलें ले पाएंगे, है ना। जैसे आपको महंगी फसलों में सर्पगंधा, वच, है ना। सर्पगंधा वच लगभग लगभग 1 एकड़ से आपको 3 लाख रुपए तक ये इनकम देता है। पर वच के लिए जो जमीन है वो सॉइल क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। सर्पगंधा, अश्वगंधा, इन सब के लिए सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। तो आप जब जो भी आपकी खुद की जमीन है या आप जो भी जमीन ले रहे हैं उस पे सॉइल क्वालिटी जो है वो बहुत, हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं सॉइल क्वालिटी कैसे सुधार सकते हैं वो सब भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पर फिलहाल ये भी एक पॉइंट है कि जमीन कैसी है उसका भी आपको एक होमवर्क बनाना पड़ेगा। रिसर्च, छोटी सी रिसर्च जो है, चाहे तो आप मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं आपके पास की लैब में, है ना। ये सॉइल कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी या थोड़ी छोटी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद पानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी बजट में, और प्लस आप कौन सी जड़ी बूटी बोने वाले हैं इसमें है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको पानी लगता ही नहीं है। सनाए पत्ती इतनी कमाल की जड़ी बूटी है और इसका इतना ज्यादा डिमांड है। सनाए पत्ती जो बंजर जमीन हो, जहां पर 30-40-50 सालों से भी कभी कोई फसल ना ली गई हो, आप उस जगह में भी जमीन तैयार करके सनाए पत्ती लगा दीजिए। बिना पानी की एक बूंद के आपकी सनाई पत्ती तैयार हो जाती है, ठीक है। और भाव भी बहुत अच्छा है, होती भी बहुत अच्छी है, बीमारी कुछ नहीं लगती है, कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। बहुत कमाल की जड़ी बूटी, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे आपके साथ। जब आप बताएंगे ना तो आपको सनाई भी बताऊंगा। ये बहुत कन्वीनियंट है। तुलसी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बिना पानी के हो जाता है, ठीक है। फिर वच जो है, वो धान देखा होगा आपने। हम बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश में, ये धान यहाँ से जाता है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर जो धान के खेत होते हैं वो गेहूं के खेत से धान का खेत अलग होता है। यदि आप कृषक हैं या आपने देखा होगा तो आपको समझ जाएंगे कि धान का खेत जो है उसमें पानी भरा जाता है। तो वच की खेती भी सेम उसी तरीके से होती है। वचा की खेती जैसे धान की खेती होती है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में लगाते हैं और वो पानी भरा हुआ चाहिए वच को। तो पानी की उपलब्धता भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जब ये रोड मैप अपना खुद का बनाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद मौसम, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश जो है वो उष्णकटिबंधीय वनों वाला इलाका है, तो यहाँ पे अधिकतर गर्मी रहती है। इसलिए अश्वगंधा भी बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि गर्म प्रदेश है, ठीक है। कुछ लोग हमारे पास अभी कुछ लोग हिमाचल से होंगे, तो वो ठंडी जगह है ना। कुछ उत्तर प्रदेश के होंगे, कुछ होंगे महाराष्ट्र के होंगे जो गर्म प्रदेश है ना। तो ये आपके यहाँ की जलवायु क्या है। जलवायु के बाद बारिश की स्थिति आपके यहाँ क्या होती है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट करेगा कि आप क्या जड़ी बूटी लगाएंगे और वो कैसी होगी, ठीक है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें वो है कि आपने जो ये बजट बनाया है या जो भी अपना समय और धन आप इसमें खर्च करने वाले हैं, तो आपने इससे कितने एक्सपेक्टेंसी रखी है, आप कितना पैसा इसमें कमाना चाहते हैं, ठीक है। ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चिकित्सक हैं, हम मरीज देख के जो मरीज देख के हम जो धन कमाते हैं उसको सर्विस बिजनेस कहते हैं, सर्विस क्लास का बिजनेस, ठीक है। और ये जो है ये प्रोडक्ट है लेबर क्लास का बिजनेस है, ठीक है। पैसा उससे भी आता है, उससे नो डाउट,
पर जो सर्विस क्लास से बिजनेस आता है उसमें कम एफर्ट लगते हैं, और जो ऐसे श्रम जनित कार्यों से पैसा आता है उसमें एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं जो समय देने वाला हूँ, जो मैं धन लगाने वाला हूँ, क्या वो वर्थ इट रहेगा भी, क्या मैं उससे, मेरी जो प्लानिंग है वो उतना पैसा मुझे कमा के देगी। तो आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पे फिर जो है आपको इसमें, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम होती है, हमने उगा तो लिया, वो चिकित्सक को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये किसानों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो, उनको पता नहीं है ये अश्वगंधा है या जो भी जड़ी बूटी हमने उगा लिया, इसका क्या प्रयोजन है, कितना यूज होगा, क्या रेट है, ये उनको नॉलेज नहीं होता किसानों को। तो उनके लिए ये समस्या होती है, चिकित्सकों के लिए नहीं होती। उनको तो पता होता है कि अश्वगंधा क्या भाव है, बचा क्या भाव है, उनको सब पता होता है। पर उसके बाद भी यदि हमने, मान लीजिए अश्वगंधा 5 एकड़ में लगा दिया और 10 या 12 एकड़ का एवरेज अश्वगंधा देता है, कुंटल का, सॉरी, तो 10 मतलब 1000 किलो से 1200 किलो तक अश्वगंधा मैंने उगा लिया। तो अभी इस लार्ज क्वांटिटी में आपके शहर का जो भी पंसारी है वो तो खरीदेगा नहीं। तो इसके लिए आपको या तो किसी फार्मेसी से या किसी बड़े डीलर से, है ना, जैसे दिल्ली में खरी बावली जो मंडी है, हमारे मध्य प्रदेश में नीमच जो है वो मंडी है, मंदसौर नीमच जो इलाका है वहाँ नीमच मंडी है जड़ी बूटी की, वन औषधियों की मंडी। तो ये आपको बायर आपका पहले देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहीं पे प्रॉब्लम होती है कि हमने उगा लिया पर हम बेचे किसको, बायर। तो ये बायर आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये उगा रहा हूँ और मेरे पास इसका बायर है। ठीक है। उसके बाद जो है एक और भाग है जो हमारे लिए बड़ा इजी होता है, क्योंकि हमको प्रयोज्यांग सारे पता है। तो ये भी रिसर्च आपको करनी होगी। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, जैसे तुलसी का प्रयोज्यांग जो है वो पत्ती है, वो पंचांग है। ठीक है। पर आज मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। वृंदावन, मथुरा वृंदावन या ये जो एरिया है, यहाँ पर तुलसी की पत्ती भी बिक जाती है, पंचांग भी बिक जाता है, उसके अलावा तुलसी का तना बिकता है। क्योंकि वो जो तुलसी की माला बनती है, आपने देखा होगा, तुलसी की माला बहुत बड़ा बिजनेस है। तुलसी की माला का छोटी सी मशीन आती है, उससे लोग बनाते हैं माला को। तो जो प्रयोजन वाला जो टॉपिक है ये बहुत क्लियर है, हम लोगों का क्लियर है, पर आपको फिर भी, आप जो फसल लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी फसल का कौन सा जड़ काम आएगा, पत्ता काम आएगा, फूल काम आएगा, छाल काम आएगी, या क्या काम आएगा। यदि काम आएगा तो कौन सी चीज को किस टाइम पे कलेक्ट करना है, कितने दिनों की फसल में मुझे, जैसे तुलसी में आप देखें तो तुलसी में जो है वो आपने बो दिया, 3 महीने में फसल आ जाती है, 90 दिनों में तुलसी आ जाती है। तो 90 दिनों के बाद आपको 6 इंच छोड़ के तुलसी को काट लीजिए और पत्ती कलेक्ट कर लीजिए। पर इसके बाद क्या होता है, लास्ट में 3-4 कटिंग के बाद में लास्ट में आपको उसकी मंजरी या भी कलेक्ट करनी है, क्योंकि सीड बिक जाता है तुलसी का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या इंटरवल में मुझे बीज का लेना है, तो बीज के लिए काटना है, कितने दिन रखना है। तो ये सारा होमवर्क भी आपके पास पहले होना चाहिए कि मुझे कितने कितने इंटरवल में कटिंग लेनी है, कितने किस इंटरवल में कौन सा परिजांग मुझे कलेक्ट करना है। ठीक है। ये होमवर्क आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको ये पता करना है, ये तय करना है आपकी सॉइल, आपका पैसा, आपका देश काल परिस्थिति जो है, मतलब जो आपका आपके प्रदेश का जो मौसम है, उसके हिसाब से आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें सिर्फ 4 या 5 जड़ी बूटी का आपको चयन करना है। ठीक है। उससे ज्यादा में आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको शुरुआत के 3 साल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो शुरुआत के 3 सालों में आप सिर्फ 4 या 5 या 2 या 3 औषधियों पर ही केंद्रित रहिए। ठीक है। उसी पे केंद्रित रहिए और उसमें ही अपनी विविधता बनाइए। उसके बाद अगली फसल के लिए जाइए। ठीक है। इसके बाद आपको जो है इसका जब आपने ये सब कर लिया तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि मुझे इसका सीड कहाँ से मिलेगा। ठीक है।
क्योंकि ये जड़ी बूटियां तभी अच्छी उगती हैं जब आपको बीज अच्छा मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो आपने ये सब डिसाइड कर लिया, इसके बाद में आपको जो है वो सीड बीज की व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो बीज की व्यवस्था कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि इंडिया में कोई स्ट्रक्चरल वे नहीं है जड़ी बूटी की खेती करने का, तो सीड के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको कई बार अश्वगंधा का मैं एक उदाहरण आपको जैसे बताता हूँ कि आपको बीज तो दे देते हैं पर वो बीज में जर्मिनेशन नहीं होता, ठीक है। छोटी छोटी एजेंसीज हैं, बहुत अलग अलग जगह रहती हैं, तो बीज की प्रामाणिकता देखने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि जिससे भी आप बीज ले रहे हैं उससे ये कहिए कि भैया इस बीज से पहले आपने जिस भी किसान के यहाँ लगाया हुआ या किसी के यहाँ लगाया हुआ आपने खुद लगाया हुआ, वो मैं फसल देखूंगा उसके बाद में बीज लूंगा, है ना। इसके अलावा सीमैप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सीमैप से बहुत सारे कुछ मतलब बहुत से तो नहीं पर कुछ बीज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीज की प्रामाणिकता का अभाव है इंडिया में। हो सकता है कि मुझसे ये पॉइंट छूट रहा हो और कहीं पे अवेलेबिलिटी हो, पर तब भी आप बीज वहीं से लें जब जब आपने उस बीज से उगा हुआ फसल देखा हो, ठीक है। कोई किसान यदि कर रहा है तो उसको देख उससे ही ले जो पहले से उगा रहा है, तो यहाँ पर हमारे फेल्यूर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद ये सारी चीजें जो है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारा जो फ्रेमवर्क है आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद ही ये होगी, ये आगे की स्लाइड्स में वही है, चूज द राइट प्लांट, साइट सिलेक्शन, है ना, जो भूमि की हमने बात की। सॉइल प्रिपरेशन को मैं आगे एक दिन जो है सॉइल के ऊपर वो पूरा सॉइल प्रिपरेशन ही वहां पर बताने वाला हूँ, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, एक और इसमें जो बजटिंग वाले में जो है कि बजट बनाने वाले में आपको इसके लिए लेबर जो तय करनी है वो भी ऐसी लेबर करनी है जो थोड़ी स्किलफुल हो, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती में तो उनको पता होता है कि कैसे उगाना है, पर जड़ी बूटियों में उनको नहीं पता होता, तो कई बार नुकसान हो जाता है। मुझे ही कई बार हुआ है, मेरे पास बहुत सारी मैंने अभी गुग्गुलों के बारिश से पहले मैंने गुग्गुलों के कुछ पौधे लेके आए थे, तो मेरे यहाँ के वर्कर को पता नहीं था कि गुग्गुल का है या क्या है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुए थे वो गुग्गुल के पौधे, तो उन्होंने वो गुग्गुल के पौधे खत्म कर दिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पौधा मुझे मिला था, एक तुलसी की वैरायटी है, उसको पान पान का पौधा, तुलसी और तुलसी की वो वैरायटी जिसमें थोड़ा मेंथॉल मिलता है, ऐसी 3 प्रजातियों से मिला के उस तुलसी की वैरायटी को बनाया गया था। मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने मुझे उसके 5 पौधे दिए थे कि आप इससे आगे की फसल तैयार कर लो, तो मैं वो 5 पौधे लेकर आया था, बहुत दूर से लेकर आया था। तो वो क्योंकि मेरे वर्कर को उतना आइडिया नहीं था आंटी को, तो उन्होंने वो उस 5 पौधों में से सिर्फ एक पौधा आज बचा है, 3-4 उखाड़ के फेंक दिए कचरा मान के या कुछ भी, मतलब लापरवाही उसमें कर दी, तो मुझे सिर्फ एक पौधा मिला। तो ये जो आपका वर्कर है या जो भी आप लेबर तय करने वाले हैं थोड़ी स्किलफुल होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए, और थोड़ी इसकी शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको उसको देनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान होता है ना। इसी में बच के कंधे लाया था, बच जो है वो कंधे से लगता है, तो बच के कुछ कंधे लेके आया था, वो बच के कंधे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। बहुत पहले मैं काली हल्दी के बीज कहीं से मैंने प्राप्त किए थे, वो काली हल्दी लगाई थी, उसके साथ भी वही अनस्किलफुल वर्कर होने के कारण वो उसका बीज उन्होंने नष्ट कर दिया। तो ये भी एक आप रखिए पार्ट, और ये निरंतर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जिसको भी आप लेबर रखेंगे उसकी शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग या आपको उसको सिखाते रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों में इनको पता नहीं होता है कि किस चीज का क्या कलेक्ट करना है, उसमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या यदि वो काला पड़ गया है फंगल, जैसे हमारी फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारा आंवला कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो बाजार का आंवला आता है वो हाँ, मैं ये ग्रेडिंग में भी आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको बताता हूँ। मैं जहाँ जिस जगह रहता हूँ वहां पर पातालकोट नाम
एक बहुत प्रसिद्ध जंगल है, और पेंच नेशनल पार्क भी, पेंच के जो घने जंगल हैं वो भी बहुत हैं। तो आप जो पंसारी से जो आप आंवला लेके आते हैं वो कैसे आता है, मैं उसकी जर्नी आपको छोटी सी शेयर करता हूँ। हालांकि मैं बहुत समय ले रहा हूँ, पर फिर भी आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि ग्रेडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, और सोर्स ऑफ आपका जो रॉ अर्थ का सोर्स क्या है वो जानना कितना जरूरी है। देखिए, तो ये आदिवासी जिला है, यहाँ पर क्या होता है कि सुबह सुबह ये लोग 4 बजे 5 बजे से आंवला जंगल में कलेक्ट करने जाते हैं। अधिकतर थोड़ा कम जाता है हमारे यहाँ पर, थोड़ा बाद में जाता है। पहले जो है वो रात में गिरा हुआ आंवला ही सुबह वो कलेक्ट करके लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद जंगल से आंवले के साथ साथ लकड़ी काट के भी लाते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बर्तनों में पानी गर्म करने रखते हैं, और उसी में आंवले को डालते हैं उबालने के लिए, है ना। आप जानते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन, आंवले में विटामिन सी होता है, या है ना, खट्टा द्रव्य की औषधि है वो, तो उसका एल्यूमिनियम के साथ पहली बात तो संयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। संयोग हो भी गया वो कोई बात नहीं, इसको फिर उबालते हैं, ठीक है। अब इसको उतना उबालते हैं, मतलब हाफ कुक कर देते हैं उसको। हाफ कुक करने के बाद तो जो उसका न्यूट्रिशन है वो पूरा पानी में आ जाता है, वो उस पानी को फेंक देते हैं। और फिर आंवले के ये लोग गुठली सीड जो है वो उसको अलग करते हैं और अपने आंगन में डाल देते हैं, ठीक है। आंगन में मैंने बहुत जंगल घूमा है, मैं बहुत सारे हमारी एक कंपनी है मेरी वाइफ की, तो कंपनी का नाम कबीला है, क्योंकि हम सभी गांव वालों को और हमारे जो 300 से ज्यादा हमारे हर्ब कलेक्टर्स हैं उन सबको हम एक कबीले या एक परिवार की तरह हम ट्रीट करते हैं, इसलिए हमने उसको कबीला नाम दिया हुआ है। तो हमारे कबीला के बहुत सारे सदस्य, हम उनको रेगुलर एजुकेट करते हैं, ऐसा नहीं करना, पर क्या पहले क्या होता था वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं जब देखा है मैंने, वो क्या करते हैं आंगन में ही डाल देते हैं, कोई नीचे कोई तिरपाल नहीं डालेंगे, किसी बर्तन में नहीं सुखाएंगे, वो आंगन में सूख रहा है। आदिवासी हैं तो मुर्गी भी पाली हुई है, बकरी भी पाली हुई है, कुत्ता भी है लावारिस सा, तो कभी उस सूखते हुए आंवले के ऊपर, हरड़ के ऊपर भी, हम जहाँ रहते हैं इसको हरड़ का कैपिटल कहते हैं, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हरड़ इसी जगह पे होती है, हरड़ के साथ भी यही होता है। तो उसके ऊपर मुर्गी घूम रही है, उस पर बीट कर रही है, बकरी चल रही है, बकरी सोई हुई है, कुत्ता सोया हुआ है, ठीक है। फिर ये ऐसे आंवला सूखता है, और ऐसा सूखा हुआ आंवला फिर व्यापारी के पास जाता है, व्यापारी से आपके पंसारी के पास आता है, और फिर उसी आंवले का आप पिपला बनाते हो, ठीक है। इसलिए आप यदि देखेंगे तो आपको जितना पंसारी के यहाँ का आंवला मिलेगा वो काला मिलेगा, सूखा हुआ आंवला मिलेगा पर काला मिलेगा। तो हमने क्या नवाचार किया है ना, ये नवाचार जो है वो आपको भी करना पड़ेगा, इस पूरे का जो की है वो नवाचार है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि आपको ये छोटे छोटे इनोवेशन, छोटे छोटे शॉर्ट ऑफ एसओपी बनाने पड़ेंगे। तो हमने एसओपी जो बनाया वो आप सुनिए। हमने 1.5 लाख रुपए की एक मशीन कस्टमाइज कराई, ठीक है। वो उस मशीन जो है वो क्या करती है कि हम आंवला लेके आते हैं, आंवला वॉश करते हैं पानी से, उसके बाद उस मशीन में डाल देते हैं। तो वो मशीन में पानी नहीं डालना पड़ता, ठीक है। बिना पानी के आप आंवला डाल दीजिए, आपका आंवला अलग कर देगी और गुठली अलग कर देगी, ठीक है। गुठली टूटेगी भी नहीं, क्योंकि जो टूटी हुई गुठली इस आंवले में जाती है तो वो क्वालिटी खराब करती है। ग्रेडिंग की जो बात है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 यदि आप बेचने जाओगे तो ग्रेड 1 आंवला होता है, उसमें गुठली लेस देन 5% होती है, एक्सक्यूज मी। तो लेस देन 5% गुठली जिस आंवले में होती है उसकी ग्रेडिंग ए कहलाती है। तो वो मशीन से हम करते हैं, गुठली अलग हो जाती है, हमारा आंवला अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको एसएस के ट्रेज में सुखाते हैं, ठीक है। एसएस 304 फार्मा ग्रेड का जो स्टील होता है उसके ट्रेज हमारे पास है, हम उसमें सुखाते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें पानी नहीं डाला, तो उसका जो जूस था वो उसी में विद्यमान है, हमने उसको उबाला नहीं, तो उसका कलर खराब नहीं होता। अब ये जो सुखाया वाला आंवला है ये हल्का गुलाबीपन लिए होता है, ठीक है। और जो बाजार का आंवला है, आप सभी चिकित्सक है, आपने सबने आंवला देखा है सूखा, आप देखोगे सारा आंवला काला आता है। पर अभी हमने शुरू नहीं किया है, हमारे यहाँ अभी फ्रेश आंवला आना शुरू नहीं हुआ है, अभी इस हफ्ते से हमारे यहाँ सूखा आंवला चालू हो जाएगा। तो ये मैं आपको कोर्स होते होते तक यदि सूख गया तो मैं आपको दिखाऊंगा क्लियर डिफरेंस
कि कैसे बाजार का आंवला काला होता है, हमारा खुद का हमारी एसओपी से बनाया वाला आंवला गुलाबी होता है। ठीक है, उसका चून में भी अलग ही वो कालापन लिया हुआ चून होता है, ये बड़ा अच्छा सफेद गुलाबी सा चून आता है। तो ये ऐसे आपको सॉर्ट ऑफ एसओपीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये सारे पॉइंट हम जो रोज डिस्कस करेंगे उनका शॉर्ट है। ये सारे लेयर्स हम क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, है ना, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, रेगुलेटरी, पेस्टिसाइड्स। तो उसके अलावा जो फ्यूचर पोटेंशियल मैंने आपको बताया कि फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो पूरी तरह से आयुर्वेद चिकित्सकों के और हमारे हाथ में है। ये कोर्स खत्म होने के बाद हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो हम इसमें सभी वैद्य जो उगाना चाहते हैं या उगाकर बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या एक बड़े प्रोजेक्ट में 1000 एकड़, 2000 एकड़ या 5000 एकड़ जमीन में जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी हम एक कम्युनिटी बनाएंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग इच्छुक होंगे वो हमें बताइएगा, तो हम इस काम को बड़े स्तर पे करेंगे। अब ये जो भी मैं बता रहा हूँ, क्या यह संभव भी है? क्या इससे करोड़ों अरबों रुपए का धंधा बनाया जा सकता है? उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक कंपनी का नाम बताता हूँ जो आप भी जानते होंगे। ऑर्गेनिक इंडिया एक कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने ग्रीन टी से शुरुआत की थी। तो उन्होंने आज की डेट में इंडिया के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है वो। ऑर्गेनिक इंडिया, जिन्होंने तुलसी की चाय और ग्रीन टी से शुरुआत की थी, आज 100 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अपने सारे उत्पाद अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के द्वारा अपने बनाए हुए एसओपी से प्राप्त करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और उन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर जो बिजनेस बनाया हुआ है। ठीक है, आप कभी एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपको ग्रीन टी में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक इंडिया की बनाई हुई टीज ही मिलेंगी। आज आप जाओगे तो वहां पर आपको जितने हर्बल टीज मिलेंगे वो सारे ऑर्गेनिक इंडिया के द्वारा सप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, और जो स्टार्टअप का जो एरा चल रहा है उसमें भी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो कैटेगरी है वो है ऑर्गेनिक और हर्ब्स, है ना। तो मैं चाहूंगा कि इस ग्रुप से कोई ट्रेनिंग लेके सीख के और कुछ आगे करके नेक्स्ट शार्क टैंक इंडिया के नेक्स्ट सीजन में जाए। मुझे बहुत खुशी होगी आप सबको देख के। ठीक है, उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स के नाम हम ले रहे थे इंडिया में जिन्होंने इसको प्रूव किया है कि ये संभव है, उनमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो ऑर्गेनिक इंडिया है। उसके बाद पे बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डाबर ने कवर किया हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे उससे जो कवर किया हुआ है वो पतंजलि ने कवर किया हुआ है। उसके बाद जो प्लेयर है वो है आईटीसी। यस, यू हर्ड इट राइट। जो आईटीसी कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता है, वो आईटीसी कंपनी जड़ी बूटी पर भी बहुत निवेश कर रही है। हमारे जिले में भी करीब करीब 100 एकड़ में तुलसी और बहुत सारे अन्य उत्पाद वो जो है वो ट्रेनिंग भी देते हैं और फार्मिंग भी कर रहे हैं, ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। और 2 हर्ब का मैं कंप्लीट विधि बता दूंगा आपको कि कैसे, कहाँ से उगाना है और कैसे बेचना तक वहां तक। ठीक है, तो आपका 7 दिनों में 14 या 14, 15, 20 ड्रग्स करीब करीब कंप्लीट हो जाएंगे। हेलो सर, ये भेजने का तरीका है ना, कर्नाटका से ये नीमूच तक जाना मुश्किल होता है सर। बहुत ज्यादा वो क्या मंडी नहीं है साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में हैदराबाद के आसपास सर होता है। मैं बताऊंगा आपको, पर मुझे जहां तक पता है कि अच्छा, आपका इधर केरल वाले एरिया तरफ में कोई वेंडर्स नहीं मिलते हैं आपको? मुश्किल है सर, वो पता ना, वो एड्रेस वगैरह। अच्छा, मंडी अच्छा, जैसे नहीं मिल रहे सर वो। मंडी जैसे नहीं मिलता ना, तो सर इसीलिए ये जो टॉपिक जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए ना, तो आप जो फसल लगाएंगे ना या कलेक्शन शुरू करवाएं या जो भी शुरू करवाएं, इसमें एक पॉइंट और आप तय कीजिए कि कितने किस लेवल पे आप उगाने वाले हो। क्योंकि जब आपका स्केल बढ़ जाता है ना, तो फिर तो आपको ये ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं बचता। क्योंकि पतंजलि पूरे इंडिया से सोर्स कर रहा है। बहुत, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ,
पूरे इंडिया से यदि आप अच्छी ग्रेडिंग का माल आपने उगाया है तो वो तो आपका कहीं नहीं बचने वाला। ट्रकलोड जैसा आपने कर लिया तो फिर आपके भाड़े की समस्या खत्म हो जाती है। तो ये इसलिए ये पॉइंट्स सारे जो हैं उनका, आप जो भी जड़ी बूटी उगा रहे थे, जितने मैंने पॉइंट्स बताए, ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक करने हैं कि ये वाले पॉइंट इसमें बैठ रहा है कि नहीं, मैंने उगा लिया तो इसका ट्रांसपोर्ट का क्या प्रॉब्लम जाएगा, ट्रांसपोर्ट यदि लग रहा है तो क्या कॉस्टिंग इसकी ट्रांसपोर्ट की मुझे लगेगी, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग लगेगी वो वर्थ इट है या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस आप खुद जब अपने आप से करोगे तब आप बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क बना पाओगे, इसलिए मैंने बताया। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हेलो हाँ सर, जी। पहले की जो खेती रहती है ना, केमिकल्स वगैरह उसमें डाले रहते हैं, तो वो कन्वर्ट करने में कितना टाइम हो जाता है, फिर अब हम मैम ये उसका ऑर्गेनिक खेती की? मैं उसका तरीका बताता हूँ कि देखिए वो जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड उसको सर्टिफिकेशन कहते हैं, पर अभी जरूरी नहीं है कि आप जो डिमांड सप्लाई का गैप है ना मैम वो इतना ज्यादा है कि अभी ऐसा कोई नहीं है कि आप ऑर्गेनिक उगाओगे तभी खरीदेगा, वो तो सब जगह बिक जाएगा मार्केट में। आप जैसा उगाओ, जिस भी क्वालिटी का उगाओ, बचता कुछ भी नहीं है, सारा बिक जाता है। रही बात आपके क्वेश्चन की दूसरे हिस्से की कि उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो यदि बहुत सालों से उस पे चल रहा है तो ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किस ग्रेड का केमिक, क्योंकि पेस्टिसाइड अलग होते हैं, जड़ी ये सॉरी खाद अलग होती है ना, पेस्टिसाइड्स अलग होते हैं, और एंटी फंगल्स यूज होते हैं, ये सब का प्रभाव कितने साल में खत्म होता है ऐसा कोई स्टडी नहीं है। पर एक जो जनरल सिनेरियो में 3 साल तक यदि आपने प्रयोग नहीं किया तो आपकी लैंड की स्थिति सुधर जाती है, या जो रेशो आता है वो खत्म हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, यदि 3 साल तक उस जमीन पे आपने केमिकल नहीं यूज किए तो। लेकिन सर अभी ये हाँ, जड़ी बूटी की खेती करने के पहले हमको ऐसा करना जरूरी है कि 3 साल पहले नहीं उगाना, नहीं नहीं वो नहीं, मैं बोल तो केमिकल रहा हूँ नहीं ना मैम, डालना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप बहुत है ना। अभी डिमांड सप्लाई का गैप इतना है कि आप जो उगा लो, जैसा उगा लो, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सब बिक जाता है। सर सैंपल का वगैरह ऐसे कुछ एग्जामिनेशन वगैरह नहीं रहता ना, रिजेक्ट होगा ऐसे कुछ क्या उसको रहता है मैम क्या? देखिए, मैं वही आपको बार बार बता रहा हूँ कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं होता। आप ओके जो सर, भी थैंक यू। उगाओगे जैसी भी क्वालिटी का उगा लेंगे, हालांकि ऐसा करना नहीं है, वो तो हमको तो अच्छा ही बनाना है, पर जिस भी क्वालिटी का, आप अश्वगंधा की जैसे आप बात कर लो, अश्वगंधा आपका 100 रुपए की जो मार्केट मंडी का भाव है, तो वो 100 रुपए से खुलता है भाव, और अभी कोरोना में तो मंडी भाव ही 500 रुपए चला गया था। चिल्लर में 650 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए तक अश्वगंधा बिका है, तो वो 100 रुपए में भी बिकता है। हेलो, मैं इधर कर्नाटक से बोल रही हूँ सर। ओके ओके, बोलिए मैम। सर इधर लज्जाड़ू बहुत ये हो जाता है, हमें मिलता बहुत है अच्छी बात है, एक क्विंटल। लज्जालू लज्जालू तो बहुत हाँ, मार्केट वैल्यू बहुत तो ज्यादा है, मूल्य मार्केट की में वैल्यू उसमें। वो किधर बिक जाएगा सर? बिकता है ना मैम, लज्जालू बहुत बहुत डिमांडेड है, बहुत कम मिलता है लज्जालू, हम्म, यदि आप अच्छा इधर लज्जालू। इधर बहुत है, साधारण 4-5 क्विंटल ऐसा दे सकती हूँ मैं। अरे वाह, ऐसा। बहुत अच्छी बात है। तो मैम ये सब 7 दिन हो जाए, मेरा नंबर है ग्रुप में, या आपको कोई भी एडमिन दे देगा, तो आप बताइएगा, मैं इसका कोशिश करूंगा कि आपको मार्केट प्रोवाइड करवा पाऊँ। ओके। डॉक्टर साहब, ये जो आंवले की मशीन आपने बताया है, क्या हम्म। इसका आप एक वीडियो या एक फोटोग्राफ आप शेयर कर सकते हैं क्या? मैं कोशिश करूंगा सर कि दे दूं आपको। हाँ जी। ओके। और दूसरा सवाल यह था कि जो निर्गुंडी होती है, हाँ निर्गुंडी का यूज क्या, मतलब उसका कैसे एक्सट्रैक्ट निकाला जा सकता है या उसको यूज कैसे करें, वो नहीं, थोड़ा। निर्गुंडी तो पत्ती बिक जाती है, पत्ती ही बिकती है, उसका पंचांग, शॉर्ट ऑफ पंचांग बोल लीजिए आप, पंचांग ओके बिकता है उसका, एक्सट्रैक्ट वगैरह या ऐसा कुछ प्रोसीजर, मतलब उसमें उसको प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो उसका कोई बायर अवेलेबल हो तो प्लीज शेयर करें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बायर सेलर की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7 दिन से पहले पहले कुछ बड़े बायर्स के जो है वो एक लिस्ट आप लोगों को दे दूं, ओके, इंडिया वाइज। या श्योर, थैंक यू। यस, थैंक यू। सोनल, और कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम
नहीं सर, आई गेस आज के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। हेलो थैंक यू सर, थैंक हेलो सर यू। हेलो मैंने अभी स्टार्ट किया, एक 5-6 मंथ हो गए। मतलब हमारी खेती है, तो मैं जी। आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, इधर प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। और अभी वो लज्जालू वो बोला ना मैंने, और तो लजालू अड़ूसा। आपने लगाया हुआ है या फिर वाइल्ड नहीं, वो सोर्स का है? तो जो हाँ वो देते हैं, मैं मतलब मैं परचेस करती हूँ उनसे। वो जो अच्छा, काम करते हैं ना, तो वो ला के देते हैं। ओके। मतलब नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा बहुत हूँ कि सारा सेल वो जाता है। वो वाइल्ड सोर्स से आता है या कोई खेती हाँ कर रहा वही। है? हाँ, नहीं नहीं, खेती नहीं, वाइल्ड सोर्स से आता है। वाइल्ड सोर्स, ठीक है। वो बहुत इधर फॉरेस्ट है ना, जो इधर का है ना, साउथ कैनरा, मतलब हम्म मैंगलोर उडुपी वगैरह है ना उसके पास में। हम्म, तो बहुत सारे अच्छा। जंगल है, फॉरेस्ट है ऐसा। जी फॉरेस्ट एरिया जी। होने की वजह से सब मिलता है। हम्म, जी। अड़ूसा लगाया है मैंने, अड़ूसा है। और अच्छा। मध्य थोड़ा प्रदेश में अड़ूसा की खेती नहीं होती, इधर वाइल्ड से बहुत ज्यादा अड़ूसा आता है, हाँ, वहीं से जंगलों भी से बहुत मिलता अड़ूसा है। आता है। जस्ट हाँ जी। वो जो कंपाउंड के लिए वो बनाते हैं ना, कंपाउंड, वो इसके हाँ लिए। हाँ, हाँ हाँ। वो भी करते हैं। अच्छा। हेलो। सोनल ठीक है, कोई? ठीक है। हम्म। हाँ जी। सोनल हाँ जी कुछ सर, नमस्कार। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन देख लो, नहीं तो फिर हम हाँ जी जी सर सर। बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर गुरमीत बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। बोलिए सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बधाई के पात्र हो और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इसको हम दिल से करें तो बहुत सक्सेस बिल्कुल हो बिल्कुल सकते हैं सर। इसमें। आप सर दूसरी पंजाब चीज, से बोल रहे हैं, आपको तो पता है एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है, कनाडा और इधर सब बाकी सब देशों में जो एक्सपोर्ट का मार्केट कितने बिल्कुल अच्छे सर। तरीके से कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है, और हमारे अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता सर। यदि आयुर्वेद डॉक्टर इस फील्ड में नहीं आएगा तो कोई और आने ही नहीं वाला। नहीं सर, हाँ बहुत जी हाँ अच्छा जी एफर्ट है आपका। और हम सबको जो है इसमें अच्छा हाँ पार्टिसिपेट जी। करना चाहिए, दिल से, बिल्कुल ईमानदारी बिल्कुल से। सर। और सर मैं एक पूछना जी, चाहता था आपको, जो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ हेलो बोलिए ना सर। सर, जो मशीन है ना आंवले वाली, हाँ उसका सर रिक्वेस्ट है, जरूर एक बार आप सभी से शेयर करें हाँ हाँ, उसकी जो मैं वीडियो। कोशिश करता हूँ सर कि मैं कर पाऊँ उसको। जी जी जी। ओके, थैंक ओके यू सर, ओके। थैंक सर लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मितेश सोनी जी पूछ रहे हैं कि वो हिमाचल से हैं और वो ओके। चाहते हैं कि जमीन पर एप्पल के ट्री को ग्रो करना, तो क्या ये पॉसिबल है, उसकी खेती की जा सकती है? मैम ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि हम जड़ी बूटी खेती की बात कर रहे हैं और एप्पल जो है वो फलोद्यान डिपार्टमेंट की बात है। तो और मेरा कोई वो भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है एप्पल का, मैं कुछ नहीं बता सकता। इवन मैंने हिमाचल विजिट भी नहीं किया है, मैं चंडीगढ़ तक ही गया हूँ, उसके आगे गया भी नहीं हूँ तो हेलो सर। वो। हाँ जी। सर एक्चुअली उनका क्वेश्चन ऐसा था कि एप्पल की खेती के बीच में औसत की खेती कर सकते हैं कि नहीं, शायद ऐसा वो ये है लिख रहे क्वेश्चन हैं। मेरे, ये मेरा मुझे बहुत पसंद आया, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जो एप्पल का ट्री है या कोई भी ऐसा ट्री है, उसके ऊपर ना आप दो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आप एप्पल के ट्री के ऊपर केवाच, ठीक है, या पिपली शायद उस सीजन में नहीं होगा, आप केवाच का मॉडल बना सकते हैं बहुत अच्छा। केवाच जो कौच बीज होता है, कौच बीज की बेला, उसमें आप बारिश के टाइम पे 3-4 बीजे जो हैं वो नीचे एप्पल के जड़ के पास लगा दीजिए, ठीक है। वो जो है वो बारिश भर ग्रो होता है और इस सीजन में हार्वेस्ट होने लगता है, ठीक है। 2-3 बेला एप्पल का ट्री क्योंकि अच्छा घना होता है, उसमें 2-3 बेला बहुत आराम से जाती है, ठीक है। तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं। दूसरा जो बीच में गलियारा होता है ना, बीच में गलियारा होता है, उस पर आप हल्दी ले सकते हैं, बहुत पैसा भी देती है और हल्दी जो है वो छाया पसंद भी हो जाती है, ठीक है। तो आप हल्दी बीच के गलियारे में हल्दी का हार्वेस्ट ले सकते हैं और ऊपर जो है वो आप
कौच लगा सकते हैं नो एफर्ट्स के साथ। अच्छा, केमाज में जो प्रॉब्लम होता था कि वो रोए जो उसके चुभते हैं, ये जो खुजली जो करते हैं, जो इचिंग जो होती है केमाज से, तो कुछ वैरायटीज आ गई हैं जिनमें नहीं होती, आजकल इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये इस तरीके से आप 3 फसल उसमें ले सकते हो। एक केमाज की फसल जो ऑटोमेटिक लगानी है, ना आपको उसके लिए कोई खाद देनी है, ना आपको कोई हार्वेस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेड़ पर चढ़ के हो जाएगी। बीज के गलियारे में आप हल्दी ले लीजिए। सर आपने जो ये किमाच यानी कोच के बारे में जो बताया है, इसका सीड जैसे कि आपने बताया ना, नई वैरायटी अवेलेबल है जैसे नहीं होती है, तो वो भी कहाँ से मिलेंगे? इसकी भी डिटेलिंग शायद आने मैं वाले कोशिश करता हूँ कि वो मिल जाए उसका। या श्योर। इसके आगे चल के आगे वाले सेशंस में इसके बारे में डिटेलिंग होगी क्या? कोच के बारे में, हाँ कोच का सेशन है, 1 दिन का कोच का सेशन है। ओके, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि उसके सीड्स वगैरह भी कहीं से मिल जाए तो आप। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सर। ये ग्रुप बंद नहीं होगा सर, उससे बेफिक्र रहिए आप। ग्रुप तो बाद भी चलते रहेगा, बायर सीलर और जो गाइड है वो सब हो जाएगा। जी जी। एक चीज जानना था आपसे, ये मोरिंगा जो ड्रम स्टिक होता है, इसको लेके कुछ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फलियां तो मोरिंगा का सेशन है सर, 1 दिन का सेशन है मोरिंगा का, तो जिस दिन वो रहेगा उस दिन हम बता देंगे पूरा। श्योर श्योर, थैंक यू जी। सॉरी टू इंटरप्ट, अगर सर आप परमिट करें तो हम ऑलरेडी टाइम से थोड़ा एक्सटेंड कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस कल ले मैं ले सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता दूं आपको कि मैं 8 बजे सो जाता हूँ, तो मैं तो वैसे भी टाइम से आगे चल रहा हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन और ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? सर पंजाब में जैसे हमारे पास लैंड है 4-5 एकड़, उसमें कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हम उगा सकते हैं? सर ये मैंने जो आपको एक क्वेश्चंस जो लिखवाए हैं, है ना, पहले तो आप वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, तो वो पूरा आप पहले बना लो फ्रेमवर्क। उसके बाद जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, या 2-3 जड़ी बूटियां या 8-10 चीजों का मैं पूरा फ्रेमवर्क बता दूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आधा आपको भी मिल जाएगा और मुझे भी आंसर देने में मजा आएगा। सर मुक्ता शुक्ला जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम बजट रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिनल फार्मिंग? वो भी मैंने बोला ना कि जो क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं वो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं, ठीक है? और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो डिपेंड करेगी आपके क्वेश्चन के आंसर पे। जितने मैंने क्वेश्चन 8 या 10 क्वेश्चन बोले हैं, आप उनका आंसर लिखिए, पहले खुद से लिख के देखिए, उसको एवेल्युएट कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास बजट निकल जाएगा, और नहीं निकलेगा तो फिर मैं आंसर बहुत अच्छे से दे दूंगा।